Remaining students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, so let's start the lecture. I will share the screen. In previous class, we have to study about the AM, definition of AM, types of AM, and parameter of AM. There we will discuss about the two types of parameter. First one is the modulation index M, uh, various cases of modulation index. Okay, formation of modulation index, that is M equals to Vm by Vc. Another formation of modulation index is V max minus V minimum divided by V max plus V minimum, where V max is the maximum amplitude of AM signal, V minimum is the minimum amplitude of AM signal. Okay, and afterward we have to discuss about the range of the modulation index. It will be the in between 0 to 1. Various cases we have to discuss regarding the modulation index. First one case, when we consider the modulation index is 0, there will be the only the carrier is present, information is 0. Second case, when consider the modulation index is 0.5, half consider, there will be the modulation AM signal is also present is there. Case third is consider the maximum modulation. Maximum modulation is M equals to 1. Maximum modulation is present, but when M is greater than 1, there will be the losses in form of the overlapping. Okay, so we have to consider the range of the modulation index in between 0 to 1. Okay. Afterward, we have to discuss about the another parameter, that is the power. The power of double sideband full carrier consider is that PT equals to PC plus P sideband. Sideband power PC plus M square by 2 PC by consider this formation. Okay, so the final expression is the PT equals to PC 1 plus M square by 2. So the total power in terms of carrier power and the modulation index. Afterward, we have to discuss about the power saving in case of various types of AM. First one, consider the double sideband suppressed carrier. We have to save the 66.66% power. Afterward, we have to consider the single sideband full carrier. We have also saving the 16.6% power. And the third one is the single sideband suppressed carrier, where we are saving the 83.3% power. Okay, so that's one the power saving analysis for the various type of AM. Okay, afterward we have to derive the different formation of the power expression. PT equals to PC 1 plus M square by 2 is converted into the current formation. As we know that the P equals to I square into R, so that will be the IT square into R, IC square into R से R cancel out हो गया. So IT square equals to IC square 1 plus M square by 2. IT equals to IC under root of 1 plus M square by 2. And afterward we have to discuss the in numerical analysis regarding the current formation of the AM signal. Okay. Today we will discuss the another parameter, that is the efficiency. आज अपन क्या discussion करेंगे? तीसरा parameter कौन सा है? Efficiency. As we know that the PT equals to PC plus PSB. PC is the carrier power, PSB is the sideband power. So the total power equals to carrier power plus sideband power. The final expression, as we discussed in previous lecture, PT equals to PC 1 plus M square by 2. ये पहले अपन स्टडी कर चुके हैं. PT equals to PC 1 plus M square by 2. अब next is the efficiency formula neta.
represented by the symbol neta. Neta equals to useful power divided by the total power into 100. Efficiency is always calculated in percentage, so that's why it is multiplied by the 100%. Okay, so the useful power कौन सी होगी? साइड बैंड पावर. तो साइड बैंड में ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, कैरियर तो है नहीं इतना इंपॉर्टेंट. एक्चुअली अपने को सेंड क्या करनी है? इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट रहेगी? साइड बैंड में. व्हेन वी कंसीडर द अपर साइड बैंड, जैसे अपन अपर साइड बैंड कंसीडर करें तो उस अपर साइड बैंड वाले एक्सप्रेशन में क्या आएगा? इस एक्सप्रेशन में देखो, अपर साइड बैंड वाले में एक्सप्रेशन में क्या है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. और ये ओमेगा एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से रिलीवेंट है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्चुअली क्या है? इंफॉर्मेशन. तो जहां जहां ओमेगा एम प्रेजेंट है जिस टर्म में, 3 टर्म है यहाँ. पहली टर्म कौन सी है? ओमेगा सी वाली, कैरियर वाली. दूसरी टर्म कौन सी है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, अपर साइड बैंड. तीसरी टर्म कौन सी है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, लोअर साइड बैंड. तो इन बताओ, इसमें तीनों टर्म्स में से इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ ओमेगा एम नहीं है, दूसरे वाले में ओमेगा एम प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. तीसरे वाले में भी ओमेगा एम प्रेजेंट है, इसमें भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है? अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में. सो द साइड बैंड पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? ओमेगा है. आई बात समझ में? ओके. सो इन केस ऑफ एफिशिएंसी फॉर्मूला, the useful power is the side band power. Useful power is the side band power. Total power is pt. अब इसको करो तो साइड बैंड पावर p साइड बैंड इक्वल्स टू pc 1 m स्क्वायर बाई 2. जैसे लास्ट क्लास में अपन एनालिसिस करा था इसमें कि इस केस में अपन देखें तो Pt इक्वल्स टू क्या आएगा? Pc 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये वाला एक्सप्रेशन है. Pt इक्वल्स टू Pc 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2. इसको अपन डिफरेंट ओपन आउट करें तो ओपन आउट करने पे क्या आएगा? Pt इक्वल्स टू Pc 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये फाइनल एक्सप्रेशन है. ओके, सो द Pt इक्वल्स टू Pc प्लस Pc इंटू एम स्क्वायर बाई m स्क्वायर बाई 2. सो टोटल पावर बेसिकली कैसे डिवाइड हुई इसमें? कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर. Pt इक्वल्स टू Pc प्लस PSB. Et equals to PC plus side band power. So the side band power is the PC m square by 2. Is side band power. So the put in this case side band power is the PC m square by 2. Total power PT equals to PC 1 plus m square by 2. PC से PC कैंसिल आउट हो गया. फाइनल एक्सप्रेशन नीचे का क्या आया? m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m स्क्वायर इंटू 100%. क्लियर हुआ ये एक्सप्रेशन? ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. आरटीयू एग्जाम में जनरली इस पे भी न्यूमेरिकल पुट ऑन होता है. न्यूमेरिकल जनरली जो पुट ऑन होंगे वो मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ.
मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे आ सकता है न्यूमेरिकल, पावर पे न्यूमेरिकल आ सकता है, और तीसरा फैक्टर कौन सा है इसमें, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी पे भी जनरली न्यूमेरिकल पुट ऑन होते हैं एग्जाम में। सो द फाइनल एक्सप्रेशन शुड बी रिमेंबर नीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m स्क्वायर इनटू 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, अब इन केस व्हेन द मैक्सिमम मॉड्यूलेशन, अगर बाय द वे अपन कंसीडर करें कि मैक्सिमम मॉड्यूलेशन हो रहा है, उस केस में कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी एएम के केस में। मैक्सिमम मॉड्यूलेशन के लिए एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, क्योंकि एम की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 to 1। 0 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1। So when put m equals to 1 in above expression, so the neta maximum क्या आएगी, 1 divided by 2 plus 1, 1 by 3. So 1 divided by 2 plus 1 into 100, 1 by 3 into 100, that is 33.33%. That means efficiency is very low in case of AM. Efficiency इसकी कम रहेगी, जिसमें कि अपन मैक्सिमम मॉड्यूलेशन कंसीडर कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एम की वैल्यू 1 जो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एम इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, 100% मॉड्यूलेशन। 100% मॉड्यूलेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, 70% होगा, 80% होगा, मैक्सिमम 90%। पर इन केस मैक्सिमम मॉड्यूलेशन कर दिया, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन प्रोसेस लगा दिया, एम इक्वल्स टू 1 कर दिया, 100% कर दिया, उस केस में भी इफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी आएगी, 33.33%, जो कम है, दैट इज वेरी लो। तो इन केस ऑफ एएम ये डिसएडवांटेज है एएम कि एफिशिएंसी इन केस ऑफ एएम इज वेरी लो। इज इट क्लियर? ओके। और प्रैक्टिकली देखें, ये तो थियोरेटिकल वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करा 33.33%। प्रैक्टिकली इन केस ऑफ एएम एफिशिएंसी ओनली 25%। प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट करोगे लैब में जाके एफिशिएंसी को, तो ये मैक्सिमम कितना आएगा, 25%। 25% से ऊपर नहीं आएगा प्रैक्टिकली। ओके, थियोरेटिकली 33%। ओके, ठीक। नेक्स्ट अपन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नेक्स्ट एनालिसिस क्या करेंगे। सो एनालिसिस करने से पहले अपन एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊंगा। So when we are required to send the information from one point to another point. Okay. For example, we are required to send the information from Bhilwara to Chittor. Okay. So at Bhilwara, we have to establish the AM transmitter. Okay. Transmit करना है तो establishment क्या करेंगे, भीलवाड़ा में AM transmitter। रिसीव कहाँ करना है, चित्तौड़ पे करना है। सो वी हैव टू रिक्वायर्ड ए एएम रिसीवर एट चित्तौड़। ओके, एंड द एएम सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम भीलवाड़ा टू चित्तौड़ बाय यूजिंग फ्री स्पेस, है ना। फ्री स्पेस से सिग्नल ट्रांसमिट करा, एएम सिग्नल ट्रांसमिट करा फ्रॉम भीलवाड़ा टू चित्तौड़, एंड द ट्रांसमीटर इज प्रेजेंट एट भीलवाड़ा, रिसीवर इज प्रेजेंट एट चित्तौड़। ओके, फर्स्ट पॉइंट। Second one point is information is required to send the Bhilwara to Chittor. Before sending the information, we are required to the modulation process. पहले उसमें modulation process करेंगे, उसकी strength और उसकी energy, उसकी power को improve करेंगे, afterward उसका transmission करेंगे, है ना। अभी तक ये अपन ने स्टडी करा। मॉड्यूलेशन कौन सा करा अपन ने सिग्नल में, AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एएम और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहां परफॉर्म करेंगे, ट्रांसमीटर सेक्शन पर। ट्रांसमीटर सेक्शन कहां पे है, भीलवाड़ा। इज इट क्लियर? ओके। अब सेम इसका रिवर्सिबल, जैसे मॉड्यूलेशन अपन क्या कर रहे हैं भीलवाड़ा पे, तो डीमॉड्यूलेशन कहां करेंगे अपन, चित्तौड़ पे। जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है उसका रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वही सेम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपने को चित्तौड़ पे चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ चित्तौड़ पे या रिसीवर पे, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन कहां करा, भीलवाड़ा पे, डीमॉड्यूलेशन कहां किया, चित्तौड़। मॉड्यूलेशन कहां करा, ट्रांसमीटर सेक्शन पे, डीमॉड्यूलेशन कहां करा, रिसीवर सेक्शन। इज इट क्लियर? ओके। सो
अब अपन आगे जो फर्दर स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में, वो स्टडी क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एएम मॉड्यूलेशन, और दूसरी टर्म क्या है, एएम जनरेशन, हाउ वी कैन जनरेट द एएम सिग्नल practically. Is it clear? So firstly we have to study about the AM modulator और AM generator. और ये AM जनरेटर या AM मॉड्यूलेटर कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ट्रांसमीटर सेक्शन. इज इट क्लियर? इसके बाद अपन आगे क्या स्टडी करेंगे, AM डीमॉड्यूलेटर और AM डिटेक्टर. टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेटर को डिटेक्टर. So afterward we have to study about the AM demodulator और AM detector. AM demodulator और detector कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, रिसीवर सेक्शन में. क्लियर हुआ? ठीक है. ट्रांसमीटर पे AM मॉड्यूलेटर और जनरेटर, रिसीवर पे AM डिमॉड्यूलेटर और डिटेक्टर. इज इट क्लियर? अब अपन आगे. तो फर्स्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द AM जनरेटर और AM मॉड्यूलेटर. ओके. अब AM मॉड्यूलेटर की स्टडी करने से पहले अपन एक वेवफॉर्म के एनालिसिस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट है वेवफॉर्म, बेटा इसको केयरफुली देखना. सो जस्ट सिंपली कंसीडर ए स्क्वायर वेवफॉर्म. जस्ट सिंपली कंसीडर ए स्क्वायर वेवफॉर्म. अगर कोई स्क्वायर वेवफॉर्म है और पीरियडिक है, ये वाले सिग्नल क्या है, पीरियडिक है. ये यहाँ से चालू हुआ, 0 से चालू हुआ, T/2 तक गया, फिर आफ्टर टाइम पीरियड T के फिर दोबारा स्टार्ट हुआ ये. ओके. आफ्टर टाइम पीरियड T के फिर दोबारा ये स्टार्ट हो गया. तो कौन सा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड T के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है. फिर दोबारा कहाँ रिपीट हो रहा है, 2T के बाद. आ रही है ना. तो पहले ये T के बाद रिपीट हुआ स्क्वायर वेवफॉर्म में, फिर 2T के बाद रिपीट हुआ, फिर ये 3T के बाद रिपीट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये सिग्नल कौन सा है, पीरियडिक सिग्नल. ठीक है. पीरियडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट अपन कैसे करते हैं, इस वाली फॉर्म में. इस स्क्वायर वेवफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन f of t equals to 1/2 plus 2 upon pi cos of omega ct minus 1/3 cos of 3 omega ct plus 1/5 of cos of 5 omega ct. ठीक है. अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वेवफॉर्म है. एएम जनरेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वेवफॉर्म रहेगी. तो इस वाली वेवफॉर्म को बहुत केयरफुली समझना है. कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझसे आप तुरंत अभी डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है. ओके. अब ये स्क्वायर वेवफॉर्म बनाएंगे, पीरियडिक बनाएंगे टाइम पीरियड T से. T पे रिपीट हो गई, 2T पे रिपीट हो गई, 3T पे रिपीट हो गई. एक अपन ने स्क्वायर वेवफॉर्म पीरियडिक विद द टाइम पीरियड ऑफ T एनालिसिस करा, उसका एक्सप्रेशन अपन ने कैलकुलेट करा. एक्सप्रेशन उसका क्या आया, 1/2 कांस्टेंट आया. फिर उसके बाद आया 2/π एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आया. फिर अपन देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, cos ऑफ ओमेगा ct है, माइनस के 1/3 cos ऑफ 3 ओमेगा ct है, फिर प्लस के 1/5 cos ऑफ ओमेगा ct. ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है. यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया कि पहली टर्म में तो ओमेगा c था फ्रिक्वेंसी का, दूसरी टर्म में 3 ओमेगा c बन गया, तीसरी टर्म में 5 ओमेगा c बन गया, नेक्स्ट क्या आएगा 7 ओमेगा सी, 9 ओमेगा सी. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 1/2 और 2/π, ये तो कांस्टेंट है, इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है. इफेक्ट या ऑब्जर्वेशन किसका करना है, इस फ्रीक्वेंसी का. ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी. तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा इसमें, देयर इज ए ऑड हार्मोनिक्स. ऑड हार्मोनिक कैसे हैं, 1 ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी, 7 ओमेगा सी. So there is a odd harmonic, so there will be the half wave symmetry. Half wave symmetrical. Half wave symmetrical का मतलब क्या है, अगर रेफरेंस लाइन से हाफ इधर राइट में और हाफ लेफ्ट में, ये बराबर है ना, सिमेट्रिकल है ना भाई. हाफ इतना ये है, हाफ उतना ये है, मतलब जो लेफ्ट में है वही राइट में है. तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि स्क्वायर वेव फॉर्म में अगर हाफ वेव सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म कौन सी है, हाफ वेव सिमेट्रिकल है. मतलब उसके ये अपन रेफरेंस लेवल लें तो रेफरेंस लेवल से जो लेफ्ट में है वही राइट में, तो हाफ वेव सिमेट्रिकल है. सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया कि हाफ वेव सिमेट्री के रेस्पेक्ट
it is also represent the odd harmonic. Odd harmonics, that means the odd frequency component. Odd frequency component क्या है? ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी, 7 ओमेगा सी, 9 ओमेगा सी, ये इस तरह से आगे चलते जाएगा. तो odd harmonics, that means the odd frequency band, frequency component. फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन से ऑड हैं? ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी. तो दो ऑब्जर्वेशन इसमें निकल के आए बेटा कि एक तो हाफ वेव सिमेट्रिकल है और दूसरा ऑड हार्मोनिक्स. इज इट क्लियर? बात आई समझ में? अब मैं आगे बढ़ता हूं. अब बाय द वे, अगर ये जैसे डीसी वाला पार्ट है 1/2, 1/2 को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें या 1/2 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस के 1/2, और यहाँ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/5 cos ओमेगा सी टी माइनस के 1/3 cos ऑफ 3 ओमेगा सी टी प्लस 1/5 ओमेगा सी टी. अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसको 1/2 को अपन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस 1/2 कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ टी माइनस 1/2 कर रहे हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड है या ग्राउंड लेवल है, ये वाला जो ग्राउंड लेवल, ये वाला जो ग्राउंड लेवल है, अगर इसमें से वन में से अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना दिखाई दे रहा है स्क्वायर वेव फॉर्म? अभी इसका स्क्वायर वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे. माइनस t/2 से t/2, तो ये x एक्सिस हो गया. y एक्सिस पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है. अब इस एम्पलीट्यूड 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 1/2 इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया? ये f ऑफ t माइनस के 1/2. तो ये किधर शिफ्ट हो गया? डाउनवर्ड में. ये वाला इसका अब एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा? 1/2. तो ये शिफ्ट कहाँ हो गया? ये 1/2 नीचे शिफ्ट हो गया. 1/2 ऊपर रहा, 1/2 नीचे शिफ्ट हो गया. इस तरह से आगे. अभी भी ये क्या है? इसमें हाफ वेव सिमेट्रिकल है ना? हाफ वेव सिमेट्रिकल है ना? इस रेफरेंस लेवल के जो इधर है वही सेम इधर है, तो कौन सा है? हाफ वेव सिमेट्रिकल. हाफ वेव सिमेट्रिकल है तो कौन सा हार्मोनिक्स बताएगा? ऑड हार्मोनिक्स. ओमेगा सी, 3 ओमेगा सी, 5 ओमेगा सी, इस तरह का. इज इट क्लियर? सिंपल है. ठीक. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं. ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन, गेट की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको समझो देखो कि if 1 megahertz sinusoidal carrier, है ना, 1 megahertz sinusoidal carrier is AM amplitude modulated, ठीक है, by a symmetrical square waveform of period 100 microsecond. स्क्वायर वेवफॉर्म से इसका क्या करा है अपन ने? AM किया है. कैरियर कौन सा है? 1 मेगाहर्ट्ज का. स्क्वायर वेवफॉर्म का पीरियड कितना दे रखा? 100 माइक्रोसेकंड है. The question is that which one of the following frequency will not present in modulated signal? अब स्क्वायर वेवफॉर्म दे दी है जिससे मॉड्यूलेशन करना है. कैरियर सिग्नल दे रखा है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है. अब डिटरमाइन क्या करना है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा जनरेट होकर, अगर इसका मॉड्यूलेशन करें इन दोनों सिग्नल का, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में दें, तो आफ्टर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहेंगी. ठीक है. अब इसके सॉल्यूशन में देखो, कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, ये गिवन है. साइनसोइडल कैरियर 1 मेगाहर्ट्ज का. ठीक है. एफएम जो स्क्वायर वेवफॉर्म है, जो स्क्वायर वेवफॉर्म है उसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 100 माइक्रोसेकंड. तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे होगी? f इक्वल्स टू 1/t 1/100 माइक्रोसेकंड. कैलकुलेट करने पे क्या आया? 10⁴ हर्ट्ज. 10⁴ हर्ट्ज कैलकुलेट हुआ. fc क्या है? 10⁶ हर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10⁶ में. तो fc इक्वल्स टू 10⁶ हर्ट्ज, fm इक्वल्स टू 10⁴ हर्ट्ज. अब जैसे अपन मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में दो साइड बैंड आते हैं, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड, और एक कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो कैरियर फ्रीक्वेंसी तो 1 मेगाहर्ट्ज ही रही. साइड बैंड में fc प्लस fm अपर साइड बैंड बना, fc माइनस fm लोअर साइड बैंड बनेगा. इज इट क्लियर? तो अब 1 मेगाहर्ट्ज अपने को पता है कैरियर फ्रीक्वेंसी है, fm अपन ने कैलकुलेट कर लिया 10⁴ हर्ट्ज है. तो fc प्लस fm क्या आया? 1010 हर्ट्ज आया. fc माइनस fm कितना आया? 990 किलो हर्ट्ज आया. 990 हर्ट्ज आया. तो कौन कौन से कंपोनेंट आगे बताओ मुझे इसमें? 1010 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में 1010 किलो हर्ट्ज, और ये 990 किलो हर्ट्ज.
कौन कौन से कंपोनेंट आ गए, 1010 प्रेजेंट हो गया, 990 ये ए वाला भी प्रेजेंट हो गया, बी वाला भी प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब दो कंपोनेंट बचे इसमें कि 1020 प्रेजेंट होगा या 1030 प्रेजेंट। अब मैंने अभी जस्ट में बताया था कि कोई भी अगर स्क्वायर वेवफॉर्म अपन कंसीडर करें तो उसमें कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे, ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है। तो ऑड हार्मोनिक्स कौन से आएंगे इसमें, 3FM वाला आ जाएगा, 5FM वाला आ जाएगा, 7FM वाला आ जाएगा। तो जब हम 3FM कंसीडर करेंगे तो उन केस में कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या कौन से साइड बैंड क्रिएट होकर आ जाएंगे, 970 किलोहर्ट्ज वाला और 1030 किलोहर्ट्ज। तो कौन सा प्रेजेंट हो गया, 1030 वाला। 1020 कब आ सकता है, जब उसमें इवन हार्मोनिक्स हो। तो इवन तो आते नहीं स्क्वायर में, स्क्वायर वेवफॉर्म में कौन से आते हैं, ऑड हार्मोनिक। तो 990 1010 1030 तो प्रेजेंट रहेंगे। कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, 1020। तो आंसर इज सी, 1020। आई बात समझ में, इसका सॉल्यूशन है। ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री स्क्वायर वेवफॉर्म देयर विल बी द ऑड हार्मोनिक 3FM 5FM। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, AM modulator। AM modulator, there are the switch modulator। AM modulator को और कैसे, फर्स्ट वन जैसे अपन देखें तो फर्स्ट वन कौन सा है, स्विच मॉड्यूलेटर। स्विच मॉड्यूलेटर कौन, टू टाइप्स ऑफ स्विच मॉड्यूलेटर, डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर और सेकंड कौन सा है, रिंग मॉड्यूलेटर। डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर और रिंग मॉड्यूलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन पे 100% आता है स्विच मॉड्यूलेटर में। तो इसको केयरफुली समझना है, केयरफुली इसको एनालिसिस करना है। आप सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर, फर्स्ट वन इज द डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। अब इधर ये फिगर देखो, फिगर देखो, इसमें फिगर में क्या है, चार डायोड है, D1 D2 D3 D4, ठीक है। चार पोर्ट हैं, A B C और D, चार पोर्ट हैं। और सेंटर में क्या कनेक्ट करा है, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी है। एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। तो कैरियर सिग्नल यहाँ सेंटर में कनेक्ट करा हुआ है, एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। ये डायग्राम समझ में आया, ठीक। अब देखो इधर कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ, इस वाले डायोड के पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट हुआ, इस डायोड के पॉजिटिव। ये यहाँ नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव किससे कनेक्ट हुआ, इस डायोड के नेगेटिव से। ये नेगेटिव है, ये किससे कनेक्ट हुआ, इस डायोड के नेगेटिव से। तो चारों के चारों डायोड किस फॉर्मेशन में आ गए, फॉरवर्ड बायस। So during positive half cycle, all the four diodes are in forward bias. All diodes are in forward bias. आई बात समझ में, फॉरवर्ड बायस में क्या रहेंगे डायोड, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट वाले केस में क्या रहेगा, जो इनपुट है वो सारा का सारा एज इट इज कहां चला जाएगा, आउटपुट पे। शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होता है ना कि जो भी अपन इनपुट में देंगे वो सीधा का सीधा कहां चला जाएगा, आउटपुट। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट केस अपन ने कंसीडर करा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल all the four diodes are in forward bias, so the four diodes are working as a short circuit, so that means the जो भी इनपुट पे है वो सीधा का सीधा कहां ट्रांसफर हो गया, आउटपुट पे। इज इट क्लियर, जो भी इनपुट दिया वो सीधा सीधा कहां चला गया, आउटपुट पे। अब जैसे दूसरा केस है तो ये साइनोसोडल है, cos ऑफ ओमेगा सी टी, तो साइनोसोडल है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल देखें जैसे इसकी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। सो when we draw the diagram,
In this case, during the positive half cycle and negative half cycle. So in this case, positive half cycle, ये positive है, ये negative. ये positive half cycle. During the positive half cycle, that's one the positive. So positive is connected diode 1, 2, 3 और 4. ये पॉजिटिव डायोड के किससे P से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव डायोड के P से कनेक्टेड है, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए 1 और 4. ये नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, 2 के N टर्मिनल से. ये नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, 3 के N टर्मिनल से. P और N होते हैं, दैट इज द डायोड में अपन देखें तो इसकी टर्मिनोलॉजी कैसे होगी इस केस में, इस तरह से लेकर डायोड. So that will be the P and this is the N. So when P positive is connected to 1 और 4 वाले डायोड में देखें तो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है. ये नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, 2 और 3 के केस में N टर्मिनल से. तो चारों के चारों डायोड किस में आ गए, फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस 1, 2, 3 and 4 are forward bias. Forward bias, that means the short circuit. शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि जो भी अपन इनपुट में देंगे, जो भी अपन इनपुट में देंगे वो एज इट इज कहां चला जाएगा, आउटपुट में. और आउटपुट एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होगा, इनपुट. ओके. अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब यहां देखें अपन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव में क्या होगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव. अब इधर समझना बेटा, ये नेगेटिव है 1 और 4 डायोड के किससे कनेक्टेड है, P से. ठीक है. ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये किससे कनेक्टेड है, 2 के N से, और ये पॉजिटिव 3 के N से. तो चारों के चारों डायोड किस में आ गए, रिवर्स बायस में. चारों के चारों डायोड किस में आएंगे, यहाँ पे रिवर्स बायस में. All the 4 diodes are the reverse bias, are in the reverse bias. और रिवर्स बायस में क्या होता है, ये ओपन सर्किट. रिवर्स बायस वाले केस में क्या आता है, ये रिवर्स वाले बायस के केस में ये किस तरह से वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह. ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के केस में कोई सिग्नल ट्रांसमिट होगा, अगर कोई पार्ट अगर ओपन है तो उस केस में जो इनपुट है वो आउटपुट में जाएगा कि नहीं जाएगा. जैसे किसी वायर को अपन ओपन कर दें तो उसमें करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं करेगी. जब तक वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक वो कोई पार्ट उसमें ट्रांसफर नहीं होगा. तो इस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर इनपुट एज इट इज आउटपुट में जाएगा नहीं तो आउटपुट क्या हो गया, जीरो. आउटपुट क्या आ गया, जीरो आ गया. इसमें आउटपुट मैक्सिमम था, जो आउटपुट एक्चुअली क्या था, जो इनपुट है मैक्सिमम था. इस केस में आउटपुट कितना हो गया, जीरो हो गया. तो किस तरह से वेवफॉर्म बनेगी, फर्स्ट वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो मैक्सिमम आया, जो इनपुट था वही आउटपुट आ गया. जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो वो आउटपुट क्या बन गया, जीरो बन गया. आउटपुट क्या बन गया, जीरो बन गया. फिर जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई फिर मैक्सिमम बन गया, फिर दोबारा क्या बन गया, ये जीरो बन गया. तो इस तरह से इसकी वेवफॉर्म आएगी. इज इट क्लियर.
इस तरह से वेव फॉर्म आएगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, जिसमें आउटपुट क्या है, 0 आ रहा है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये एक्चुअली क्या है, स्क्वायर वेव फॉर्म। ये वाली फॉर्मेशन कौन सी है, स्क्वायर वेव फॉर्म। तो स्क्वायर वेव फॉर्म से उसका एनालिसिस कर लेंगे। अब यहाँ जैसे अपन बनाए इसको स्क्वायर वेव फॉर्म के फॉर्मेशन में, तो वो इस तरह से अपन आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे अपन इसको, आज इतना ही पढ़ते हैं कि एक डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसकी वेव फॉर्म आ रही है, ये अपन ने आज एनालिसिस कर लिया। आगे ये कैसे एएम जनरेट करेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ब्लॉक डायग्राम से। इज इट क्लियर? ठीक, ओके। तो होप सो आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अब आगे के लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आगे का कोई भी लेक्चर आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेक्चर रेगुलरली अटेंड करना है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत उसी टाइम उसका डिस्कशन कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लो। अब जैसे मैंने कल तुम्हें जो पढ़ाया था उसकी आज वाली क्लास में आप डिस्कशन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो वो अभी मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। आज वाली क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ। आरू नामा, प्रेजेंट सर। अर्पित, प्रेजेंट सर। कर्नल, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, प्रेजेंट सर। रंजीत, प्रेजेंट सर। संतोष, संतोष, प्रेजेंट सर। ओके ओके, ठीक है ना। तो मैं कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, और मैं वैसे ही बहुत धीरे और आराम से आपको स्टडी कराना है इसकी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो वो आप मुझसे उसका तुरंत उसका डिस्कशन करना है ना। नोट्स मैंने ये ऑलरेडी तुम्हें दे ही रखे हैं। बुक्स तुम्हारे पास मैंने बताई रखी हैं, बीपी लाठी है, संजय शर्मा है ना, जॉर्ज कैनेडी है। और ये वाला जो सेक्शन जो मैं अभी आपको स्टडी करवा रहा हूँ ये आपको बीपी लाठी से मिले, है ना। बीपी लाठी वाले जो सेक्शन है उससे ही अपन इसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और ये लेक्चर है, मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू।